Students, in this video we are going to see the solution of problem number 25 from chapter 3 electric potential of Newton ISC physics. The question says that you are required to find out the work done to assemble the charges in this particular configuration. That's the first part of the question, and the second part of the question says that you are also required to calculate the work done in order to assemble the charges in this configuration. So there are two different configurations shown to you and you are required to find out the amount of work done. The next part of the question says, the second part of the question says that a charge Q naught has been brought from infinity to the center of this configuration and this configuration, and then they're required to find out how much extra work will be needed. So there are in fact 4 questions given in one particular question, friends, so that you have to first of all understand that there are 4 parts in this particular question. So let's try to understand and solve this question. This is an important question from each and every point of respect. In order to give you a deep understanding of electric potential, also this question is important, as well as from your any board examination or any competitive examination also this question becomes an important question, friends. So let's proceed for understanding and the solution of this particular problem, friends. So the configuration of the first configuration looks like here I've got the first charge of Q plus Q, then I've got another charge minus Q, फिर एक हमारे पास तीसरा चार्ज भी दे रखा है इन्होंने, ये भी चार्ज आपका प्लस Q है, और फिर एक चौथा चार्ज हमें दिया गया है जिसकी वैल्यू आपकी माइनस Q है. तो बच्चों जो ए कॉन्फ़िगरेशन है, जो आपको ए कॉन्फ़िगरेशन दी गई, उसमें ऐसे 4 चार्ज एक स्क्वायर के वर्टेक्स के ऊपर सिचुएटेड है. इस स्क्वायर का साइड ए है और डेफिनेटली इसका जो डायगोनल का साइड हो जाएगा वो a√2 है. आपकी हेल्प के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन में इस डायगोनल का साइड दे रखा है a√2. वैसे अगर नहीं भी दिया होता तो आप इस डायगोनल का साइड आसानी से निकाल सकते थे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. अब बच्चों मैं इन चार्जेस को लेबल कर देता हूं. इसको कह देता हूं 1, 2, इसको कह देता हूं 3 और इसको कह देता हूं 4. तो ये चारों चार्जेस आपके लेबल्ड हो गए. अब बच्चों आपने बेसिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की प्रॉपर्टीज में कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पेयर ऑफ चार्ज. पहली बात तो अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ड्यू टू एनी पेयर ऑफ चार्जेस. सो द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एनी पेयर ऑफ चार्ज is given by the formula 1/4 pi epsilon naught, that is the constant of electrostatics, Q1 Q2 upon R12. अगर कोई दो पेयर ऑफ चार्जेस हैं 1 और 2 तो ये इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चों. और पोटेंशियल एनर्जी की दूसरी बड़ी खासियत चीज है कि ये प्लस या माइनस साइन के साथ लिखा जाता है. प्लस कब लगाते हैं? जब पोटेंशियल एनर्जी लाइक पेयर्स की वजह से होती है, और माइनस साइन के साथ पोटेंशियल एनर्जी कब लिखते हैं? जब पोटेंशियल एनर्जी अनलाइक पेयर्स के साथ होती है. और अब आपको यहां समझना है कि Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस हैं, R12 इनके बीच की दूरी है. तो कुछ चीजें मैं एक हाईलाइट कर देता हूं जो इस क्वेश्चन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे. पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी प्लस या माइनस साइन के साथ लिखी जाएगी. प्लस या माइनस साइन किस बात के लिए आप लगा रहे हो? प्लस साइन कब लगाते हो? जब आपके पास पेयर ऑफ चार्जेस लाइक होते हो. तो हम यहां लिख देते हैं लाइक पेयर ऑफ चार्जेस के लिए यू आर गोइंग टू पुट अ प्लस साइन. एंड सिमिलरली नेगेटिव साइन आप कब लगाते हैं? द नेगेटिव साइन इज ब्रॉट when you have got unlike pair of charges. So potential energy must always be written with a sign. For like pair positive, and for unlike pair of charges you have to go ahead with negative sign. Okay, the next thing is that Q1 and Q2 is the product of magnitude of charges. This happens to be the product of magnitude of charges. Magnitude of charges, and R12 happens to be the distance between the two charges.
distance between the pair of charges. Now you need to also understand that the potential energy is defined. Potential energy between the charges is defined for any pair of charges. तो पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होती है? किसी पेयर ऑफ चार्जेस के लिए आप डिफाइन करते हो. तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जिनको आपको ध्यान में रखना है. और पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी जब भी आप ऐड करेंगे इसको एक प्योर नंबर की तरह ऐड करेंगे. तो बच्चों ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रख के चलनी है और इसकी मदद से हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की निकालनी होगी. एक बार मैं पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की निकाल लूंगा तो वर्क डन हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है. सो वर्क done in assembling the charges will always be equal to potential energy of the system, or more appropriately I must say change in potential energy of the system. So मैं यहाँ पे डेल्टा लगा देता हूँ, change in potential energy of the system. तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है. वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस आप कैसे निकालोगे? वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस, वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस हैपेंस टू बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. सो बच्चों ये 3-4 चीजें हैं जो इसमें बहुत ध्यान से रख के चलना है, जिसकी मदद से आप क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे. अगर ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज क्लिक ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर आई बटन. वहां पे एक आई बटन का सिंबल आएगा एंड प्लीज गो एंड वॉच माय थ्योरी वीडियोस ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी फ्रेंड्स. सो नाउ लेट्स प्रोसीड हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. जैसा कि हमने अभी सीखा कि वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की वजह से होता है. तो जितना भी मुझे चार्जेस को जब मैं असेंबल करता हूं तो जो कुछ भी वर्क डन उसके लिए रिक्वायर्ड है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या था, अब क्या कॉन्फ़िगरेशन, उनके बीच का जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा वो मुझे उस पूरे चार्जेस को असेंबल करने का जो वर्क डन है वो बता देगा. लेकिन अब एक बात को आपको यहां पे समझना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मुझे फाइंड करना है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बनेगा कैसे? ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑब्टेन्ड होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेयर ऑफ द चार्जेस फॉर्मिंग द सिस्टम. यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होता है दैट इज इक्वल टू sum of potential energy of the pairs of charges forming या making the system. अब अगर ये कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो बच्चों, तो इसमें मुझे ये ढूंढना है कि कितने पोटेंशियल एनर्जी पेयर ऑफ चार्जेस की क्या है उनका सम करना. तो मुझे सबसे पहले मालूम होना चाहिए कितने पेयर्स हैं. और नंबर ऑफ पेयर्स कैसे आप निकालोगे? नंबर ऑफ पेयर्स हमेशा NC2 के बराबर होता है. तो नंबर ऑफ पेयर्स को फाइंड करने का तरीका ये है. अब अगर बहुत ढेर सारे सिस्टम नहीं है, सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर नहीं है, बहुत ढेर सारे चार्जेस सिस्टम के अंदर नहीं मौजूद है, तो आप बड़ी आसानी से काउंट करके पेयर्स फाइंड कर सकते हो. लेकिन अगर नंबर ऑफ चार्जेस किसी सिस्टम में बहुत ज्यादा है
तो आप आसानी से पेयर नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करिए, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए NC2। इसमें n क्या होता है बच्चों, इसमें n जो है वो नंबर ऑफ चार्जेस है, n इज नंबर ऑफ चार्जेस। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास टोटल कितने चार्जेस हैं, टोटल चार्जेस हैं 4। तो 4C2, ये 4C2 किसके बराबर हो जाएगा, 6। यानी हमारे पास इस सिस्टम में कुल कितने पेयर ऑफ चार्जेस मिलने वाले हैं बच्चों, वो हमें मिलने वाले 6 पेयर। क्या हम उन 6 पेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, लेट्स सी। देखिए सबसे पहला एक पेयर तो आपको ये दिख गया 1 और 2 का, फिर आप देखेंगे दूसरा पेयर ये दिख गया आपको आसानी से, तीसरा पेयर ये भी आपको मिल गया आसानी से, चौथा पेयर ये मिल गया, पांचवा पेयर अगर आप देखेंगे तो वो ये वाला डायगोनल है, ठीक है बच्चों, और छठा पेयर आपके पास ये वाला डायगोनल मौजूद हो गया। तो इस तरह से इस पूरे पेयर में, इस पूरे सिस्टम में हमारे पास 6 पेयर ऑफ चार्जेस हैं। अब मुझे करना क्या है कि हर पेयर ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है, उनको जोड़ दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ जाएगी। और फिर वर्क डन के लिए मैं चेंज फाइंड करूंगा, इनिशियली कहां थे, फाइनली कैसे हैं, उनका जो भी डिफरेंस है फाइनल माइनस इनिशियल, वो फाइनल माइनस इनिशियल मुझे चेंज दे देगा जो कि वर्क डन के बराबर होगा। तो ये कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मोटस ऑपरेंडी है। मैंने इसको ज्यादा डिटेल में आपको समझाया क्योंकि यही एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस तरह की जो कि आपसे पूछी जा सकती है बच्चों। So let's begin finding out the potential energy of each pair. So this is the pair 1, 2. So what will be the potential energy of the pair 1, 2? It will be equals to whether they are like pair or unlike pair। पहले तो ये चेक करो, देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये हो गया अनलाइक पेयर, इसलिए मैंने साइन लगा दिया माइनस का, माइनस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो ले ली हम लोगों ने k, और ये पेयर्स की जो मैग्नीट्यूड है इसका भी q, इसका भी q, तो ये हो गया q स्क्वायर। और इन पेयर्स के बीच की दूरी बच्चों, ये दूरी कितनी है, ये दूरी a के बराबर है, तो अपॉन a, ठीक। तो हमने किस पेयर की बात कर ली, 1, 2 पेयर की बात कर ली। अब और दूसरे पेयर की बात करते हैं, वो कौन सा पेयर है बच्चों, देखो वो 2 और 3 पेयर है। तो अब 2, 3 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। 2, 3 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी में चलो, अब देखो कैसा पेयर है, लाइक है कि अनलाइक है, दिस इज एन अनलाइक पेयर, फिर से अनलाइक, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, माइनस साइन के साथ लिखोगे। और इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या हो जाएगी, k q स्क्वायर अपॉन a। इसी तरह से 3 और 4 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकालो बच्चों, और इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये भी देखो, लाइक अनलाइक, अनलाइक माइनस k q स्क्वायर और इनके बीच की दूरी यानी a। और अब पोटेंशियल एनर्जी 4 और फर्स्ट पेयर की निकालो, और इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस k q स्क्वायर बाई a। तो देखा आपने, हमने हर पेयर की, इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी को 1, 2 कह दिया, इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी को 2, 3 कह दिया, इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी को 3, 4 कह दिया, और इस वाले की 4, 1 कह दिया या 1, 4 कह दिया। अब कोई और बचे, 6 पेयर थे ना काउंटिंग में हम लोग के पास, 6 पेयर वी हैव फाउंड आउट। अब 2 पेयर और बच जाते, कौन कौन से पेयर हैं, देखो 1 और 3 एंड 2 और 4। चलिए वो निकाल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1 and 3 एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1 and 4। तो 1 and 3 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी चलो निकालो। अब बताओ ये दोनों पेयर्स कैसे हैं, लाइक है कि अनलाइक है, ये पॉजिटिव, तो लाइक पेयर, तो यहां पे साइन लग गया आपका प्लस k q स्क्वायर। और अब इनके बीच की दूरी डायगोनल के बराबर है जो कि a√2 है। और अब निकालना हो, बाकी बचता है आपका कौन सा पेयर, लास्ट पेयर 2 and 4। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर 2 and 4 कैसा पेयर है, लाइक की अनलाइक, ये भी नेगेटिव, इसलिए लाइक पेयर हो गया, इसलिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया। तो प्लस k q स्क्वायर और इनके बीच की दूरी a√2। तो बच्चों इस तरह से मैंने इस पूरे सिस्टम को बनाने वाले जितने भी पेयर ऑफ चार्जेस इन्वॉल्व थे,
आई हैव फाउंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ईच एंड एवरी पेयर। और अब मुझे सम टोटल चाहिए। देखो यहां लिखा था ना मैंने, टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेयर। तो चलो अब इनका सबका उठा के सम करते हैं। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इन सारी चीजों के सम के बराबर है। देखो ये चारों आपस में बराबर है, तो इनका जो सम आएगा वो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इन चारों का समेशन। ये 4 का समेशन कितना आ रहा है, ये हो जाएगा -4k⁴/a। और इन दोनों को जब मैं सम कर दे रहा हूं बच्चों, तो ये आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है इन दोनों का समेशन, इन दोनों का समेशन आ जा रहा है 2k⁴/a√2। और जैसा मैंने अभी बोला था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल एनर्जीज फॉर्मिंग द पेयर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पेयर्स ऑफ चार्जेस। और देखो यहां से टोटल अगर मैं इसको निकालूं तो ये हो गया -4k⁴/a और प्लस 2k⁴/a√2। ये √2 और यहां से 2 कट जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फिर क्या हो जाएगी बच्चों, जब ये कट गया आपका यहां से, ये √2 उसको काट के यहां पर √2 ले आ देंगे, तो ये हो जाएगा -4k⁴/a और ये हो गया सिंपल √2, बाकी बचे √2 इंटू √2 2 होता था, ये हो जाएगा k⁴/a। अब कॉमन निकाल लो, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बन गया k⁴/a, कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या यहां पे ब्रैकेट के अंदर k⁴/a कॉमन निकाल लिया, बचा क्या -4 एंड प्लस √2 और ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जिस कॉन्फ़िगरेशन में रखा हुआ है। अब देखो मुझे फाइंड करना था वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन किसके बराबर हुआ, वर्क डन बराबर हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के। तो अब पहले ये चारों चार्जेस कहां रखे थे, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये पहले चारों चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए थे। सो आई एम अज्यूमिंग, व्हाट इज माय अजम्पशन, कि इनिशियली all the charges, all the 4 charges were separated at infinity, ठीक है। तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या थी सिस्टम की, उस समय पोटेंशियल एनर्जी जो कि चारों चार्जेस इंफिनिटी पे सिचुएटेड थे वो हो गई थी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आई हैव रिटन डाउन एज 0। तो ये मेरा अजम्पशन है बच्चों, ये मैंने क्या अज्यूम किया कि इनिशियली चारों चार्जेस कहां पे सेपरेटेड है, इंफिनिटी पे सेपरेटेड होने की वजह से उनकी पूरी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। तो वर्क डन इन असेंबलिंग किसके बराबर था, वर्क डन इन असेंबलिंग वाज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अब ये हो गई, तो इसको मैं फाइनल हो गया ये, और चूंकि इनिशियली ये सेपरेटेड थे तो ये इनिशियल हो गई, इनिशियल। तो वर्क डन क्या था, चेंज क्या होता, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कितनी है, फाइनली जो आपने निकाली k⁴/a -4 प्लस √2। तो ये आपका वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस के बराबर हो गया बच्चों। तो जब आपने 4 चार्ज को ऐसे कॉन्फ़िगरेशन ए में अरेंज किया तो आपने कितना वर्क डन किया, ये आपका वर्क डन हो गया। चलिए अब हम लोग इसका बी कॉन्फ़िगरेशन का वर्क डन भी निकालते हैं इसी तरीके से, फिर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन भी दूंगा यहां पर। Now in the B configuration, if you see, the charges are rearranged in a different manner. At position A or at position 1, I've got a plus Q charge.
Now at position 2 again I have got a plus q charge. Now पहले यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा था कॉन्फ़िगरेशन ए में, लेकिन अब आपका कितना चार्ज रखा, प्लस क्यू का चार्ज रखा है। अभी भी ये वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर पे रखे हैं तो इनके बीच की दूरी अभी भी ए ही है। फिर आप आइए यहाँ पे फिर से ले जाइए और देखिए इसकी इस जगह पे कितना चार्ज अब आपने रख दिया, इस जगह पे आपने चार्ज रख दिया माइनस क्यू का, तो अब ये चार्ज आपके पास माइनस क्यू का आ गया है। और फिर आप चलिए यहाँ पे तीसरे वर्टेक्स पे आइए, चौथे वर्टेक्स पे आइए स्क्वायर के, और अब इस चौथे वर्टेक्स पे भी माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और ये बन गया है आपका कॉन्फ़िगरेशन बी। ठीक है बच्चों, दिस इज माय बी कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम लोगों ने ए कॉन्फ़िगरेशन की बात करी थी, ये हमारा ए कॉन्फ़िगरेशन था और ये हम लोग इसको बी कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं। ठीक है, और डायगोनल के बीच की दूरी अभी भी a√2 होगी। सारा स्टेप अभी भी वही सेम चलेगा। अब मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन में चार्जेस को असेंबल करने का वर्क डन फाइंड करना है। तो जो चीजें हम लोगों ने सीखी थी वो क्या थी कि जो वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस है, वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस is always equal to change in potential energy of the system। और change potential energy of the system, change in potential energy of the system के बराबर होता है। तो सबसे पहले मुझे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी किससे बनती है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बनती है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेयर्स ऑफ चार्जेस फॉर्मिंग द सिस्टम। तो चल बच्चों, अब हमारे पास पेयर्स ऑफ चार्जेस निकालने का काम रह गया है। कितने पेयर्स हैं, फिर से मैं एक बार लिख देता हूं, चार्जेस को लेबल कर देता हूं। ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये था 4। ठीक, तो पेयर्स कौन कौन से थे बच्चों, जैसे आपको बताया था नंबर ऑफ पेयर्स फॉर्म करने का तरीका क्या था, नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड करने का आसान सा तरीका था nc2, और यहाँ n क्या था, नंबर ऑफ चार्जेस, तो यहाँ था 4c2 और वो कितने हैं 6। ठीक है ना बच्चों, तो अब हमें करना क्या है, चलिए 6 पेयर्स कौन कौन से थे देखते हैं। ये एक तो ये पेयर है, इसको हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी 1-2 पेयर की। फिर एक ये पेयर है बच्चों, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 2-3 पेयर की। फिर देखो बच्चों एक ये पेयर है, ये पोटेंशियल एनर्जी 3-4 पेयर की। फिर देखो बच्चों एक ये पेयर है, ये पोटेंशियल एनर्जी 1-4 पेयर की है। फिर देखो एक ये पेयर है बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी 1-3 पेयर की है। और फिर देखो बच्चों एक ये पेयर बनता था। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे पास 6 पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है 2-4 पेयर की है। तो हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग एक एक करके फाइंड करेंगे। चलिए करते हैं। अब चलिए सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी 1-2 पेयर की। अब पहला क्वेश्चन जो आपको हमेशा पूछना है कि लाइक है कि अनलाइक है। देखो ये पेयर 1-2 कैसा है बच्चों, लाइक पेयर, बिल्कुल ठीक, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे kq²/a। लाइक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी प्लस साइन के साथ लिखी गई, यहाँ पे चाहो तो प्लस साइन लगा दो। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा पेयर। ये देखो दूसरा पेयर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 2-3। अब देखो ये लाइक है कि अनलाइक है, ये है अनलाइक पेयर, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी माइनस आ गई और आपने किया kq²/a। अब नेक्स्ट पेयर ऑफ 3-4 पेयर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3-4 पेयर क्या हो जाएगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी 3-4 पेयर की हो जाएगी, लाइक है कि अनलाइक, ये है लाइक तो प्लस साइन kq²/a। वेरी गुड। अब आप चौथा पेयर ये 1-4 का, तो 4-1 पेयर का या 1-4 पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, लाइक है कि अनलाइक। वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आपने अपने आप से जरूर पूछना है कि पेयर्स लाइक हैं कि अनलाइक, तो अनलाइक, तो ये हो गया माइनस। और अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई इस पेयर की, वो हो गई kq²/a। ठीक बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट पेयर पे, कौन सा पेयर 1-3। अब पोटेंशियल एनर्जी 1-3 पेयर की, बताओ लाइक है कि अनलाइक, अनलाइक। ठीक, तो क्या साइन, माइनस साइन। क्या है इसकी ड्यूटी, kq²/a√2। वेरी गुड। अब आओ इस पेयर पे, किस पेयर पे, 2-4। पोटेंशियल एनर्जी किस पेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, 2-4 पेयर की बात कर रहे हैं। लाइक है कि अनलाइक, अनलाइक, माइनस साइन। ठीक, और इसकी kq²/a√2। तो आपने हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली, तभी तो सिस्टम की निकलेगी। अब चलो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको सम करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम will be equal to summation of potential energy of all the pair। ठीक बच्चा,
अब देखो कम सम करना चालू कर, देखो 1 2 ये के क्यू स्क्वायर बाई ए और ये माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए कैंसिल कर देगा, ये के क्यू स्क्वायर बाई ए ये माइनस के क्यू स्क्वायर कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, बचेगा तो सिर्फ ये दोनों, तो बचा क्या -2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 2। अब रूट 2 और ये 2 कैंसिल करके रूट 2 रह जाएगा, तो बच जाएगा -√2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की सिस्टम की इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी आई। अब जैसा मैंने अभी बोला था कि हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि वी आर एज्यूमिंग दैट बिफोर कमिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन बी, all the 4 charges were separated at infinite distance apart। इस कॉन्फ़िगरेशन में आने से पहले चारों चार्जेस कहां पे थे, इंफिनिटी पे थे। ये मेरा अजम्पशन है, किताब में इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा, लेकिन हम अज्यूम कर लेना क्या अजम्पशन लेके चल रहे हैं, बिफोर बीइंग assembled all the 4 charges were separated at infinite distance apart। तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी, उस समय पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेटेड थे। तो ये जो सिचुएशन आया ये हमारा इनिशियल कंडीशन बन गया। तो बच्चों ये जो सिचुएशन बना है ये हमारा क्या बन गया है, इनिशियल सिचुएशन बन गया है। तो मैं इसको लिख देता हूं इनिशियली। और अब कैसे हैं ये, अब ऐसे रखे हो तो ये क्या हो गया फाइनली। तो वर्क डन इन असेंबलिंग किसके बराबर हो जाएगा, तुम्हें याद है वही बताया था, वर्क डन किसके बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज क्या हुआ, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना आया था, यही तो फाइनल था, देखो ये लिखा है हम लोगों ने, ये फाइनल था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, -√2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई ए। इनिशियल क्या था, वो था 0, तो चेंज किसके बराबर हो गया, चेंज इसी के बराबर आ गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया -2 के क्यू स्क्वायर बाई ए, और वो बन गया अब आपका ये वाला आंसर। आ गई बात समझ में आप लोगों को। अब मैंने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे दूंगा, चलिए उस क्वेश्चन को समझिए। व्हाट विल बी द वर्क डन in rearranging the charges from system A to system B। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है, मेरी तरफ से क्वेश्चन है, what will be the work required in rearranging the charges from configuration A to configuration B। बच्चों ये प्रॉब्लम भी अपने आप में अच्छी क्लासिक प्रॉब्लम है, क्योंकि अब आपको क्या करना है, चार्जेस को इस कॉन्फ़िगरेशन से अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांसफॉर्म करता हूं तो आपको बताना है कितना वर्क डन होगा। तो आपको मालूम है इसमें क्या है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, मैं हिंट दे देता हूं। हिंट क्या, आपको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन कॉन्फ़िगरेशन है, वो निकाल चुके हो अभी, देखो ध्यान देना, अभी निकाला था कॉन्फ़िगरेशन ए में। फिर आपको निकालनी पोटेंशियल एनर्जी इन सिस्टम इन कॉन्फ़िगरेशन बी, वो भी निकाल ली है। तो वर्क डन क्या होता है इन असेंबलिंग, वर्क डन इन असेंबलिंग या वर्क डन इन रीअरेंजिंग, और रीअरेंजिंग द चार्जेस, वो हो जाएगा
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का, और चेंज वर्ड का माने क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इन द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम माइनस पोटेंशियल एनर्जी इन द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो फाइनल क्या थी, फाइनल बी है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन ए कॉन्फ़िगरेशन। अब सिस्टम बी कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी ये थी, ए की ये थी, आप उसको माइनस करना और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आपका क्या आंसर आया वर्क डन का। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये करीब करीब 5 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से बनाया जा सकता है या आईएससी बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से बनाया जा सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके फंडामेंटल्स को चेक करने के लिए बच्चों। चलिए अब मैं इसके सेकेंड पार्ट पे करता हूं, सेकेंड पार्ट पे आता हूं कि आई नीड टू फाइंड आउट द वर्क डन। Students, the second part of the question asks us to find out the extra work. Students, in the second part of the question asks us to find out the extra work that one needs in order to bring a charge Q naught to the center of the square. And definitely this is under assumption that you are bringing this Q naught from infinity to this particular configuration. So there are two different configurations, so we will try to obtain the work done in bringing a charge Q naught from infinity to any one of these configurations. Let's try out with the first configuration, that is the configuration A. Now in this configuration A, I have got a charge plus Q situated at one corner. Let's name this corner as corner number 1, and I've got another charge minus Q situated at another corner, that is corner number 2. फिर एक चार्ज थर्ड कॉर्नर पे रखा हुआ है, ये थर्ड कॉर्नर प्लस Q, और फिर एक चार्ज हमारा फोर्थ कॉर्नर पे रखा हुआ है और ये फोर्थ कॉर्नर हो गया हमारे पास माइनस Q का। ठीक है, ये चार्ज A स्क्वायर साइड ऑफ द स्क्वायर A का है और डायगोनल हमारा A√2 का है, डायगोनल। सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग अस? This happens to be the center of the diagonal. Okay, now the question tells us, asks us that I need to bring a charge Q naught. कहां से? From infinity. तो Q naught से हम एक चार्ज infinity से लेके आते हैं और कहां तक लेके आना है? C, पॉइंट C तक, center of the square तक। तो इस प्रोसेस में मुझे कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स, पहली चीज जो अब आपको समझनी है कि वर्क डन in moving any charge between any 2 points is equals to Q naught times PD. Q naught क्या है बच्चों? Q naught is the charge that you are moving, charge that is moved, charge moved. Okay, and potential difference PD is the potential difference between those 2 points. तो बेटा ये वर्क डन होता है बच्चों किसी भी चार्ज को जब आप मूव करते हो किसी दो पॉइंट्स के बीच में, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू नीड टू डू। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द वे ऑफ ऑब्टेनिंग द वर्क डन। नाउ इस प्रॉब्लम में हमें चार्ज Q नॉट को कहां से, इंफिनिटी से लेकर कहां तक आना है? पॉइंट C तक लाना है। तो पोटेंशियल, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? फिर वर्क डन जो हो जाएगा, चार्ज Q नॉट को मूव कर रहा हूं किन दो पॉइंट्स में? इंफिनिटी से कहां तक लाने में? C तक। तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू Q नॉट पोटेंशियल एट इंफिनिटी डिफरेंस पोटेंशियल एट C। अब पोटेंशियल मुझे एट इंफिनिटी भी मालूम होना चाहिए। अब तुम्हें मालूम है पोटेंशियल इंफिनिटी इज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट
और रेफरेंस पॉइंट पे हम लोगों ने ऑलरेडी पोटेंशियल क्या मान रखा था, 0 मान रखा था। तो मुझे पोटेंशियल एट इंफिनिटी तो पता है 0 है। अब मुझे करना क्या है, सी पॉइंट पर पोटेंशियल और फाइंड करना है। चलो सी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो अब मुझे कहां फाइंड करना, पोटेंशियल एट सी। अब पोटेंशियल एट सी जो होगा वो सारे चार्जेस की वजह से होगा कॉन्फ़िगरेशन के। अब सी पर कितने चार्जेस हैं, कितने चार्जेस की वजह से पोटेंशियल है सी पे। पोटेंशियल एक तो चार्ज 1 की वजह से है, फिर चार्ज सिचुएटेड एट पॉइंट 2 की वजह से है, फिर चार्ज सिचुएटेड एट पॉइंट 3 की वजह से और चार्ज सिचुएटेड एट पॉइंट 4 की वजह से है। ठीक है बच्चों, तो चारों चार्जेस की वजह से मुझे पॉइंट सी पर लगने वाला पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी Q मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज इनटू R, सॉरी अपॉन R। R क्या है, R है डिस्टेंस पॉइंट C और सोर्स चार्ज के बीच में। अब यहां पे फिर से तुम्हें ध्यान रखना, पोटेंशियल हमेशा प्लस या माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा। प्लस कब लगाते हो, जब चार्ज पॉजिटिव है, और माइनस कब लगाते हो, जब चार्ज नेगेटिव है। तो ये बातों को आपको दिमाग में रखना है। एक बार मैं फिर से आप लोगों से कहूंगा, अगर आपने अभी तक ये सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं, नहीं जानी है, नहीं समझी है, तो टॉप राइट कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करिए, जाकर बेसिक लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी को पहले डिटेल में देख लीजिए। चलिए अब मैं पोटेंशियल एट पॉइंट सी फाइंड करता हूं ड्यू टू द चार्जेस प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। अब देखिए सबसे पहला पोटेंशियल किसकी वजह से सी पे है, चार्ज 1 की वजह से। तो चार्ज 1 कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, चार्ज 1 पॉजिटिव है, तो प्लस के मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज क्या है, Q अपॉन ये जो दूरी है। अब बच्चों ये जो पूरी दूरी थी वो a√2 थी, तो ये C सेंटर था, तो ये दूरी a√2/2, ये दूरी भी a√2/2, ये दूरी भी a√2/2 और ये दूरी भी a√2/2। तो ये k, q और इन सारी दूरियों को मैं किससे डिनोट कर देता हूं, x से डिनोट कर देता हूं। ठीक, x x x और ये भी x, और x क्या है, x है a√2/2। ठीक, तो x a√2/2, ध्यान रखना a√2/2। तो प्लस 1 की वजह से जो चार्ज एट 1 है उसकी वजह से k प्लस KQ/x। अब देखो चार्ज 2 की वजह से पोटेंशियल 2 पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस साइन लगा दिया, यहां पे हो गया KQ/x। थर्ड वाले की वजह से जो पोटेंशियल आएगा, थर्ड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव की वजह से प्लस KQ/x। और फिर देखो फोर्थ वाला चार्ज कैसा है, वो नेगेटिव है, तो फोर्थ वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल माइनस में आ गया KQ/x। अब पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है, देयरफॉर नेट पोटेंशियल जो होगा वो सिंपली सबका अलजेब्राइक सम हो जाएगा। चलो उनको उठा के जोड़ दो, तो देखो ये हो गया KQ/x, V2 माइनस में था इसलिए माइनस KQ/x, V3 प्लस में था वो भी KQ/x, और V4 माइनस KQ/x। अब जब तुमने इनको एड अप किया तो सब जुड़ के 0 हो गए, तो नेट पोटेंशियल एट सी कितना निकल के आया, 0। तो बच्चों अब आपने देखा कि पोटेंशियल एट सी कितना निकल के आ रहा है, वो भी 0 आ गया। तो पोटेंशियल इंफिनिटी पे 0 था, पोटेंशियल सी पे भी 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वो तो हो गया 0। तो वर्क डन क्या था, Q0 टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, 0, तो Q0 इंटू 0, तो वर्क डन हो गया 0 जूल का। ठीक है बच्चों, तो इंफिनिटी से यहां तक इस कॉन्फ़िगरेशन में चार्ज को लेके आने में आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा, इसलिए वर्क डन 0 आ गया। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन ए की बात हो गई। चलिए अब कॉन्फ़िगरेशन बी में देख लेते हैं कितना वर्क डन करना पड़ेगा। चलिए कॉन्फ़िगरेशन बी बनाते हैं और फिर उसका वर्क डन निकाल लेते हैं।
अब स्टूडेंट सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में जो वर्टेक्स 1 पे चार्ज है वो तो प्लस क्यू है। फिर आ जाओ वर्टेक्स 2 का चार्ज देखो तो वर्टेक्स 2 पे जो चार्ज है वो भी प्लस क्यू है। अब आ जाओ वर्टेक्स 3 पे चार्ज को देखो तो वर्टेक्स 3 का चार्ज क्या है, वो माइनस क्यू है। और वर्टेक्स 4 पे जो चार्ज है वो देख लीजिए, चलिए वो कैसा है, वर्टेक्स 4 का चार्ज भी नेगेटिव है बच्चों, ये तो वर्टेक्स 4 और यहां पे चार्ज माइनस क्यू। ठीक, ये डिस्टेंस भी ए, ये डिस्टेंस भी ए, ये आपका डायगोनल और ये आपका डायगोनल, और ये हो गया आपका डायगोनल का इंटरसेक्शन, और इसको आपने सेंटर सी मान लिया। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी बराबर थी, सेंटर था, तो ये x x x और x की वैल्यू कितनी थी वो आपने निकाली थी a√2। चार्ज कहां से लेके आ रहे हैं, फिर से हम लोग चार्ज Q0 को कहां से लेके आते हैं, इंफिनिटी से कहां तक लाना है, टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। और जैसा मैंने भी समझाया आपको कि जब किसी भी चार्ज को हम दो पॉइंट्स के बीच में मूव करते हैं तो वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है Q0 टाइम्स PD के। और PD क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, और Q0 क्या था, चार्ज जो आपने मूव किया। तो यहां पर किस चार्ज को हम लोग मूव कर रहे हैं बच्चों, यहां पे आप चार्ज Q0 को मूव कर रहे हो। तो चलिए अब इसकी वजह से वर्क डन फाइंड करते हैं। तो Q0 और PD क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट सम C। और ये हमारा अजम्पशन है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं इसलिए हमने सेफली अज्यूम कर लिया है कि चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर चल रहे हैं, ये हमारा अजम्पशन है बच्चों। तो चलिए वर्क डन की क्या बात हो जाएगी, वर्क डन निकालते हैं। सब वर्क डन निकालने के लिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस इन्फिनिटी का तो पता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस किस पॉइंट पर निकालना, पोटेंशियल एट पॉइंट C निकालना है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट C, अब पोटेंशियल एट पॉइंट C किसकी किसकी वजह से, चार्ज एट 1 की, चार्ज एट 2, चार्ज एट 3, चार्ज एट 4 एंड सो ऑन। और पोटेंशियल जैसा मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान में रखना। और पोटेंशियल हमेशा साइन के साथ लिखना है, पॉजिटिव कब, जब चार्ज पॉजिटिव है, और नेगेटिव कब, जब चार्ज नेगेटिव है। तो ये बातों को विशेष तौर पे ध्यान रखना। चलिए पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट पॉइंट A, उसको हमने V1 से लिखा। चार्ज कैसा है पॉइंट 1 पे, तो पॉइंट 1 पे चार्ज पॉजिटिव है, तो प्लस KQ बाई 1 से इस पॉइंट तक की दूरी यानी कि x। ठीक बच्चों, अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पॉइंट 2, वो कैसा, वो भी पॉजिटिव, तो प्लस KQ और 2 से पॉइंट C तक की दूरी वो भी x। अब आ जाओ पोटेंशियल एट पॉइंट 3, अब 3 पे चार्ज कैसा बच्चों, वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे, KQ और 3 से C तक की दूरी वो कितनी है, वो भी x। अब पोटेंशियल एट पॉइंट 4 पे आ जाओ, वो कितना है, वो भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो माइनस साइन मैंने लगा दिया। अब इसकी वजह से चार्ज KQ बाई x, इसकी वजह से पोटेंशियल KQ बाई x। ठीक, अब नेट पोटेंशियल एट C निकालो। नेट पोटेंशियल क्या हो जाए, इनका सारे पोटेंशियल का सम। अब दो प्लस क्यू के एक्स प्लस के क्यू के एक्स, 2k QX और माइनस के QX और माइनस के QX, तो नेट पोटेंशियल फिर से निकल के आ गया 0। तो फिर से इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एट C क्या निकल के आ रहा है, 0 आ रहा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस V इन्फिनिटी माइनस V एट C था, वो तो 0 हो गया, 0 माइनस 0 इज 0। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, Q0 इंटू PD, और पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा कितना निकल के आया, वो निकल के आया 0। तो वर्क डन कितना करना पड़ा आपको, 0 जूल का आपको वर्क डन फिर से यहाँ करना पड़ा। तो स्टूडेंट्स, तुमने इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम्स थे वो ये थे। मैं उन लर्निंग आउटकम्स को एक बार नरेट कर दे रहा हूं। क्या क्या लर्निंग आउटकम्स इस पूरे क्वेश्चन से हमने को सीखने को मिला। सबसे पहली चीज जो हमने इस क्वेश्चन में सीखी वो हमने वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस सीखा, इन असेंबलिंग और रीअरेंजिंग। ठीक है ना बच्चों।
और वो कैसे सीखा? वो सीखा हमने इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रादर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फिर हमने सीखा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होता है वो समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेयर्स ऑफ चार्जेस होता है। तो जितने भी पेयर्स उस सिस्टम में बनाते हैं, उस सिस्टम को बनाते हैं, उन सारे पेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को तैयार करती है। और चेंज हमेशा ये ध्यान रखना बच्चों क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। एक चीज तो ये हम लोगों ने यहां से सीखी थी इस न्यूमेरिकल से। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम हमने सीखा वो सीखा था वर्क डन इन मूविंग द चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। वर्क डन इन मूविंग चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। और वो वर्क डन किसके बराबर हो जाता था? वो हो जाता था Q नॉट इंटू पीडी। Q नॉट क्या था? चार्ज जो आप मूव कर रहे हो, और पीडी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दोज टू पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। तो बच्चों ये दो बड़े इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम्स थे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के। आई होप कि आप इसको याद रखेंगे इन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जो इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन सारी चीजों के ऊपर बेस्ड होंगे, उसमें आप इजीली अप्लाई भी कर लेंगे। दैट वाज ऑल विद दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। होप you have understood what was the learning outcomes etc of this problem. Thank you friends. Friends, thank you for watching. Don't forget to give a like or comment. अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please do the same. Don't forget to hit the bell icon so that whenever a new video is loaded you get the notification. Take care and we will meet back again with a new video and a new solution. Thank you friends.